Hello guys, my name is Dr. Deepak and today we have with us Dr. Tejaswini, who is an FMG or from FMG से now she got a rank of 3663 in NEET PG. So like it's very unique journey from FMG to now NEET PG also she has done very beautifully. So congratulations Tejaswini and thank you so much for joining. Thank you so much for having me, sir. It is really nice to talk to you in person. Thank you so much. So like how was your journey? How your preparation started for NEET PG after FMG? After FMG, actually, I wasn't preparing for NEET PG as such. I was thinking of going abroad. But Hmm. then I saw the pathway was little complicated, too much complicated. So I shifted my gears towards NEET. But internship was heavy as I was doing it in Government Medical College in Mumbai. So it was very heavy and hectic. So I knew ki it wouldn't be possible for me in this internship. So, but still I tried. And when it got postponed last year, so I was like, okay, I'll just give a good try and just do whatever is possible from my end. So I gave it last year and I got a rank of not a good rank though, but yeah, it was 28,000 last year. So after that, I knew कि इससे नहीं होने वाला कुछ तो like am I allowed to speak in Hindi or 28,000 rank is good nowadays. Seeing such a competition. that is true, that is true. But yeah, am I allowed to speak in Hindi बीच में कि it's okay if I speak English only? It's okay. It's okay. या सो आई न्यू कि आफ्टर इंटर्नशिप कि इससे तो नहीं होने वाला कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा कि मतलब एक साल है अब ड्रॉप तो लेने का सोच ही लिया तो आई वाज लाइक कि So, like how you थोड़ा बहुत prepared your डिफरेंट करना internship year, like you got a 28K, that's also good rank. After FMG, we all have such a dilemma. Like what source we have to use now? Like we have used different for FMG. Now what we have to do? नो Like आई how आई source? आई kept the source. What No, source? I kept the source Which same. I did source? not change. No, I actually for subjects, actually my main source for FMG was PrepLadder. So I use PrepLadder, same notes I used for NEET PG. Even now for this year also I use the same notes. Notes change नहीं हुए. So मेरा वो photographic memory बैठ गया था कि ये पेज पे ये है इतना पता हो जाना चाहिए बार बार चेंज करके मुझे पता था कि इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी So use सो आई prep. केप्ट दिस या एंड बस आई सप्लीमेंटेड इट विद BTR दिस ईयर. Okay. And you go to 28,000 rank. In that attempt, like how many revision you did and what changes you made from your FMG preparation? Because you are using the same notes, so पूरा monotonous भी हो गया होगा ना like. The main thing was I had Marrow Plan C also with me. So the Hmm. Delta videos were there. So in my free time, I used to watch the Delta videos and solved more MCQs because last year during internship, I did not have time for solving MCQs and all of that. GTs, I had given very less last year. So I knew कि इधर थोड़े बहुत twitches है जो थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे तो I definitely get a better rank this year. But 3,000 is something that मुझे भी पता था कि ये impossible है, ये इतना नहीं आना चाहिए था. So it came. So that is different story. But yeah, so I practiced more MCQs and that is it. Like daily, I had 100 to 50 MCQs daily from day one. It was there. अगर मैं कुछ भी ना पढ़े हुए, even if I was studying for 1 or 2 hours a day, because in the beginning, after NEET, also you have a phase कि यार क्या ही है क्यों ही करना है. You all have this question like dilemma रहता है कि if I should continue with this or should I try something different till the counseling at least first round comes. So you are there in that dilemma. So I was like, okay, I'll give the November INET. So that was the main goal after that. Okay, okay, I'll focus on November INET and see how it goes. So according to that, I just followed Zena ma'am ka BTR and then I started solving the MCQs daily. Like 100 to 50 MCQs was my daily target. Kuch nahi hoga even if 1 hour of study, but 100 to 50 MCQs were there. So that is the only Okay. thing was there So how constant. made your plans? Like your first reading, you will do these things. So second revision, third revision. How will the day used to look Yeah, like? you're asking about the day or how did I plan my Both, first both, revision? both, both, both. Both. Okay, so I'll start with the first part where I'll tell you the planning of how I divided my first division and all. So till November INET, my plan was to give a first proper read, and the last 10 days of November INET, I said कि I'll revise all of that. But वो पूरा नहीं हो पाया था. I knew कि इतना पूरा तो नहीं हो पाएगा because I was giving a detailed read. कि it was not there was no shortcut in this. RR proper RR, and then MCQs with Q. If there was a week long subject set, so I used to solve the Q banks also for more questions and supplement it with it. So that was there. So November INI set till November INI set, like I started in September mid. From there till November 10th November was the INI set last year. So till that time I had told ki I have to finish my first read and last ke 10 days, like 1st November to 10th November will be my last 10 days ka revision before the paper. So that was there, and I was able to complete at least 80% of the syllabus then. And then I supplemented after November INA set result. I again started on the same cycle. So the cycles continued.
Like it went on. Like after first year, also the second cycle went on till December, and then again in January. And then when the postponement came, I took a 10 days of break or something because I knew कि मेरा वो it was that what do you call it? The saturation phase had come. So I was like कि इसके बाद तो मेरा नहीं. I need a break. So I took a break also. बीच में vacations हुआ ये हुआ, and then after that I again sat back for studying. So that was there. So 4-5 revisions were there, but yeah, it was not consistent. Consistent. थोड़ा बहुत बीच में break लेना ही पड़ता है because saturation hits you. True. And about the second part, you were saying ki how was my day planned out? So I'm a morning person. Cannot study at night. So I used to wake up around 6 to 7, and your group was the one thing that accountability was there. Like virtual library, like in the morning, when there was need at its peak, you just have to start the channel, and then you will see 4 to 5 people at least studying. So you have that, ki, okay, there are 4 or 5 people studying. I need to at least keep my eyes open and at least open the book. So that was there. So your group virtual library was something that has helped me in the morning sessions, at least morning हो या evening हो, जब भी नींद आता था virtual library चालू करो, दूसरों को देख के you'll अपने आप you'll feel like okay, I have to study this. So that was there. So in the morning, I used to give like till 11, it was theory. From 11 to 1, I used to do MCQs and then lunch होता था. फिर lunch के बाद I used to take a light subject because तभी वो नींद वाला phase आता है. तो lighter subjects like minor subjects से कोई उठा के theory करो. Till 6 it was theory. And then उसके बाद then whole till 6 or 7 depending upon कितना बचा है क्या है target. And then after that it was all MCQs and everything. MCQs हो गया, TNDs हो गया Zainab ma'am के, and then all of that. Okay. And like how is GT scored? Like cycle का रहा पूरा, मतलब क्या किस में से start हुआ? How up down कैसा चलता रहा? या जीटीज तो हर जीटी के बाद रोना तो होता ही है. आफ्टर एवरी जीटी यू हैव टू क्राई, वरना वो जीटी कंप्लीट जीटी नहीं होती. सो माय जीटी स्कोर्स इफ यू सी इट वाज नेवर, जो मुझे अभी स्कोर आया इट वाज नेवर, आई हैव नेवर टच दैट स्कोर एवर इन जीटीज. ठीक है. सो दिस वाज समथिंग दैट मुझे, आई एम टेलिंग यू, दिस रैंक इज समथिंग दैट वाज अनइमेजिन. आई हैव टू चेक माय रैंक 10 times, multiple times, to just to see, okay, is this my roll number? I had to call my friends to check. You also check if this is my roll number. So yeah, that was there. But yeah, I started my first GT that I gave was the INICET GT tha, and I had got only like 90 questions correct there. So it started from 90, and then today it has come to 157 corrects in this NEET. So it started with that. So it has been up and down journey. Never the GT scores. Don't take GT scores too seriously. I would tell everybody that. But yeah, you will cry and you will feel like, what is the point of studying all of this when GT is not improving? It doesn't matter. Just go through your wrong questions and everything. Make a GT notebook if it's possible, because I made one. And last के few days में I only had revised that only because I was like कि मेरे से पूरा नहीं पढ़ा जा रहा अभी. मेरे पास जो GT नोटबुक थी और मेरी छोटी कॉपी थी, विद ज़ैनब मैम had suggested कि ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे मैंने बस कर दी थी वो. एंड मेरे लिए उतना ही आया था पेपर में. लकीली उतना ही आया, उससे बाहर से नहीं आया, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो गया था. And like when you are a FMG or you're doing MMBS from private college, तो always वो एक अपने खुद में एक नेगेटिविटी तो होती है ना कि यार इतना तो नहीं हो पाएगा. हाँ, Like बहुत. तो जो भी those people who are watching this video, like उनको आपको क्या बोलना है? Uh, for them, I would have just one suggestion, like, always look up to your seniors. Like, I had amazing seniors. There was one senior who has also featured in your videos also, I think Kritika ma'am. Yeah. She's also, yeah. So she was the one constant. I'm going to mention her name because she was the constant when I used to message her GT score come out. She used to send me ki ho jayega, ho jayega. There's always that positive senior who's always there. So look up to your seniors. And there's one senior who's always going to, मतलब वो ग्लास बार जो होता है ना जिससे प्राइवेट कॉलेज का ये वो तोड़ देते हैं. एंड फिर उसके बाद यू फील लाइक अरे ये कर सकता है तो मैं भी कर लूंगी. सो ऑलवेज लुक अप टू देम एंड जस्ट think कि हो जाएगा. एंड में this you have to be delusional. My INICET, you would be very surprised that my INICET rank was very bad. It was 13-14,000 था, and 13,000 end पे था. तो I would suggest say it is 14,000 only. Now may INICET this one. So उसके बाद तो I was like कि ये तो भाई अगर नीट में आया तो I knew कि this was going to be 30-40,000 में land करेगा. So just no, there was no point. But then I just told myself you have to be delusional now. There's nothing going to help you here. No GT, nothing is going to help you. You have to be delusional and just keep on revising. And I gave So from after 14,000 in May to उसके बाद just 2 month yeah, के बाद तो you got to 3663. So like क्या yeah. प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस किए उस टाइम पे, वापस से कुछ स्टार्ट किया है, सिमिलर ही बस कंटिन्यू करा रिवीजन Uh, ट्रस्ट करके? नहीं मैंने I'll tell you what I did was I solved more. मतलब मेरे जो 100 MCQs थे ना,
मैंने उसको डेली 400 कर दिया। मैंने बोल दिया बस अब, या डेली Daily 400 400 400 तो, MCQs. या How इट you used to वाज जेनम। do this 400 ओके। MCQs? Like how you planned custom module or PYQs or how? नो, इट वाज जेनम मैम के टीएनडीज आई यूज्ड टू सॉल्व। ठीक है, सो Okay. फर्स्ट आई यूज्ड टू सॉल्व टीएनडीज, और फिर टीएनडीज के बाद आई यूज्ड टू क्विकली 1.5 और 2x पे जो जो मेरे गलत रहते थे, आई जस्ट यूज्ड टू स्कैन थ्रू मैम के जो एक्सप्लेनेशंस। एंड आई एम टेलिंग यू, डोंट यू, इफ इवन इफ यू डोंट वॉच बीटीआर के सारे वीडियोस ना, इवन आई डिड नॉट वॉच बीटीआर के सारे वीडियोस, बट आई सॉल्व टीएनडी रिलीजियसली। मतलब मैम जो और उसके बाद जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस है ना, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, मैम सब बताती है। लाइक कुछ भी रहेगा ना, इवन इफ द स्मॉल चेंजेस जो तुम्हें लगता है, एंड इवन पेपर के दिन आई वुड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से कि पीछे जैनब मैम खड़ी है एंड शी इज जस्ट विस्परिंग यू द आंसर्स कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, मुझे बताइए क्यों नहीं है। सो हाँ, दैट इज हाउ इट वाज कि मैंने इतने क्वेश्चंस कर दिए थे ना जैनब मैम के टीएनडीज के, तो आई वाज एट द पीक कि ठीक है यार, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, अगर एक दो गलत हो रहे हैं इसमें, एंड कंफ्यूजिंग तो पेपर रहेगा ही। सो मेरा इतना ही था कि तू बस क्वेश्चंस करती रहे, बाकी सब देखा जाएगा। दिस वाज माय एंड में, जो आईना है के फेस से लेके इधर तक का नीट का जो जर्नी था, इट वाज ओनली दिस की क्वेश्चंस ही करने, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था। एंड आई गिव यूपीएससी ऑल्सो इन बिटवीन, सो दैट हेल्प्ड मी। आई वुड डेफिनेटली से कि यूपीएससी अगर बीच में आ रहा है ना, तो दे दो उसको। बिकॉज तुम्हारे फाइनल ईयर के जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, स्पेशली मेडिसिन और सर्जरी, ओबीजीवाई, ये तुम्हारे बहुत बढ़िया से हो जाते हैं। लाइक आई रिवाइज्ड यूपीएससी के, मैंने 5 to 6 years के पेपर्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, एंड मुझे बहुत फायदा हुआ। बिकॉज मेरा मेडिसिन, जो मैं हमेशा सोचती थी कि मेडिसिन मुझे इतना नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा, तो मैंने मेडिसिन पूरा कर लिया था। तो मेरा बिफोर अगस्त, नहीं सॉरी, बिफोर जुलाई मिड 20 तक, बिकॉज 28 जुलाई वॉज यूपीएससी का पेपर। सो उसके पहले मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो गए थे एटलीस्ट फाइनल ईयर के अच्छे से, लाइक 2-3 बार रीड मार के, तो फिर वो एक्स्ट्रा हेल्प हो रहा था। प्लस एमसीक्यूज, यूपीएससी का पेपर हो गया, ये तो डेली मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो रहा था, मेरी स्लीप बहुत कम हो गई थी। एंड 5 hours 6 hours की स्लीप पूरी थी, बट पहले तो मैं 7-8 घंटे सोती थी, बट इसके बाद तो मेरे 5 hours, मिनिमम 5 to 4 hours की स्लीप थी, तो स्लीप मेरी घट गई थी। बट आई न्यू कि अगर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक महीना ही बचा था, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी मैं। सो इसलिए थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़े थे, बट या इट इज अचीवेबल। कितना कितना टाइम लगता था 400 क्वेश्चन सोल्व करने में? बहुत मतलब अगर टीएनडी ले लो, तो टीएनडी इवन इफ आई, जो नहीं आते थे, आई यूज्ड टू जनरली स्किप इट, मैं चांस भी नहीं देती थी उसमें, बिकॉज आई वाज लाइक कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्यों इतना डबल खेलना। बिकॉज बाद में टीएनडी एक्सप्लेनेशन में पता चल ही जाएगा व्हाट वेंट रॉन्ग। सो उसको मैं स्किप मारती थी, बाकी सब जो आते थे तो आई यूज्ड टू, अगर 100 क्वेश्चंस का मैम का टीएनडी रहता था, तो आई यूज्ड टू फिनिश इट ऑफ इन लाइक, जितना मैम का शेड्यूल टाइम था उससे मैं 75 मिनट्स या फिर ऐसे में टाइमर लगा के कि इतने जल्दी में खत्म करके रख लो, बिकॉज मुझे एक्सप्लेनेशंस भी देखने हैं, तो उसमें भी वापस से हम्म। टाइम जाएगा, तो आई हैड प्लान इट आउट दैट वे। एंड देन डेली कस्टम मॉड्यूल्स तो मैरू के रहते ही थे, कस्टम मॉड्यूल्स हो गए। ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए थे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने करती थी, जैसे मुझे पता था कि मेरा पढ़ के तो हो गया था आईना के बाद, तो मेरा पता था कि थियरी है मेरे पास, बट मेरा एमसीक्यू स्किल्स कम थे, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। आई हैड मार्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर रिव्यू इन आईना सेट, एंड जो मैंने एंड में चेंज नहीं कर पाई, एंड वो मेरे आंसर सही थे, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि ये कॉन्फिडेंस कम को, लो कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। सो दैट इज व्हाई न्यू कि एमसीक्यू सॉल्विंग वुड हेल्प मी इन दिस। सो वो तुम्हें तुम्हारा ट्वीक्स पता होने चाहिए कि अच्छा तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, गैस लेने में या नहीं लेने में। तो मेरा गैस वर्क थोड़ा पुअर था, जीटीज में भी मेरा गैस वर्क बहुत कम आता था। तो उसके बाद तो आई सॉर्टेड दैट आउट। लाइक इफ आई टेल यू कि हाउ आई यूज्ड टू गिव माय जीटी, कैन आई एक्सप्लेन दैट? यस यस यस। या तो जीटीज में यूजुअली आई यूज टू सॉल्व सेक्शंस रहते थे, तो मेरा टारगेट रहता था कि इफ देयर आर 40 क्वेश्चंस, अगर इसका दे रही हूँ मैं नीट वाला, तो आई देयर वाज 40 क्वेश्चंस रहते थे। सो आई यूज टू मेक श्योर कि मेरे एटलीस्ट उसमें से जो 5 to 10 है ना, वो इसमें रहने चाहिए कि गेस्ट है कि नहीं है, मतलब होने चाहिए, कि बाद में पता चले कि इसको रिव्यू करना है कि नहीं करना है, बिकॉज वो रिव्यू करने बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेस्ट वाले। वो अगर तुम छोड़ दोगे ना कि यार गेस्ट मार के सही हो गया, तो मतलब आता है, बट वो एक्चुअली तुम्हें नहीं आता है, वो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं, तुम्हें तुक्का मारा है। So you have to go there again and visit that topic and read that out again, because वो वापस से तुम्हें पढ़ने नहीं मिलेगा। You're not going to open that GT ever again in life। अगर तुम लेके चल रहे हो कि भाई ये मैं जीटी 10 बार वापस से कर लूंगी, कभी नहीं होगा वो एक बार जीटी बंद हो गई, वो बंद ही रहेगी, बस तुम उसमें परसेंटाइल देखते रहोगे और कुछ नहीं होगा उसमें कि मेरा इतना परसेंटाइल है, इतना परसेंट है, बट डज नॉट, वो डिफरेंस नहीं मारेगा। व्हाट डिफरेंस विल मेक इज हाउ यू रिव्यू द जीटी। तो मेरा वो एक था कि गेस्ट क्वेश्चंस करने, रॉन्ग क्वेश्चंस करने, फिर करेक्ट में देख लेती थी। आई यूज टू रिवाइज सब्जेक्ट वाइज करती थी रिव्यू, लाइक सब्जेक्ट खोला बॉटम से, आई यूज्ड टू सेट क्लिनिकल पहले करती थी फटाफट से खत्म, एंड देन आई यूज्ड टू गो अप, बिकॉज एनएट मुझे पता था कि मेरा जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे वो मुझको एंड में रखती थी, ताकि मैं छोटी कॉपी में मेरे लिख लूँ। ये एनएट के जो थियोरेटिकल पॉइंट्स थे वो मैं
बीटीआर करा था मैंने, एनएट एनएट मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इन एनएट। तो मैंने उतना ही वही रिव्यू करा, वही बार बार उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे, जीटी के पॉइंट्स भी मैंने उसमें लिखे थे। फिर वो सब भी उसमें ऐड करके फिर मेरा वो एक्चुअली बन ही गया था पूरा, वो कि एनएट का हो गया था। तो ऐसे फिर मैंने हर एक सेक्शंस का मैंने करके रखा था कि जो भी गलत थे गेस थे और जो मुझे लग रहा था कि पोटेंशियल है, तो उसको मैंने लिख देती थी मैं कहीं ना कहीं अपनी बुक में, छोटी कॉपी में, जीटी नोटबुक में, कि उसको एटलीस्ट देख लूंगी मैं। और फिर जीटी नोटबुक में जब रिवाइज रिवाइज कर रही थी एंड एंड में, तो मेरा टाइम कम होते गया। लाइक पहली बार तो मुझे पूरा दिन लगता था पूरा जीटी नोटबुक करने में, एक दिन हो गया, एक से ज्यादा, कभी बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी तो मैं, इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई डिड वाज कि फर्स्ट आई डिड द जीटी नोटबुक की, आई शॉर्टेंड द लाइक द क्वेश्चंस आई यूज्ड टू गेट इट रॉन्ग, जो मुझे रॉन्ग रॉन्ग है तो उसके मैं रॉन्ग क्वेश्चंस बनाती थी, फिर सिली मिस्टेक्स का मैं अलग से कॉलम बनाती थी। एंड देन यूज्ड टू बी की कंसेप्ट गेस्ट वर्क वाले, तो आई यूज्ड टू मेक अ कॉलम रहते थे मेरे बुक के अंदर, जीटी नोटबुक में, एंड बस मैं वो टॉपिक और आंसर देखती थी। एंड वंस आई एम डन विद इट कि मुझे आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन, तो आई यूज्ड टू जस्ट स्लैश इट आउट कि आई डोंट हैव टू रीड दिस अगेन, ताकि मुझे वो बैठ गया। अब ये वापस से इफ इट कम्स तो आई नो द आंसर, तो मेरा वो टाइम बच जाता था। सो दिस इज हाउ आई शॉर्टेंड माय जीटी नोटबुक। So that also helped me in the end. ओके, यस आई थिंक वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी पार्ट। और कभी लो फेज भी तो आता ही होगा ना प्रिपरेशन में? बहुत बहुत लो जैसे फेस तो, as as I said कि being an FMG, you have to go through a lot of things. As FMG, I would say कि people always look down on you. This is the first thing that, and if you join government medical college now, you would notice that evidently कि यार ये तो FMG है, इसको फिर एक्स्ट्रा काम ते, मतलब मुझे कभी ऐसा मिला नहीं है, बिकॉज आई यूज टू लव वर्किंग, तो मुझे काम से कभी इतना ये नहीं था। बट ऐसा होता था, बहुत सारे सीनियर्स ने बोला था कि दे लुक डाउन ऑन यू, एंड ऑलवेज हैड दिस की, मुझे बस इतना पता था कि मुझे कैसे भी करके पीजी में गवर्नमेंट कॉलेज में जाके दिखाना ही है, दैट वाज द गोल, कि बस अब बहुत हो गया कि पीपल लुक डाउन ऑन यू एज एन एफएमजी, सो आई वाज लाइक कि गवर्नमेंट सीट लेके ही दिखानी है बस, वो एफएमजी का वो ये नहीं चाहिए कि भाई एफएमजी कुछ कर नहीं सकते ऐसा कुछ। सो आई न्यू कि बस गवर्नमेंट सीट एक बार मिल गई तो फिर ऐसा, इट वुड एटलीस्ट मेरे लिए, अपने लिए अंदर से, कि वो एक बैरियर मेरे लिए हट जाएगा कि आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीबॉडी कि एफएमजी कुछ कर नहीं सकते, जस्ट वो बस लोगों का वहम है। You are capable of doing anything as an FMG हो या कोई भी हो। So yeah, that was there, and फिर low phases तो बहुत थे, पूरे preparation में बहुत आए। There was days where I could not even study for an hour, मतलब किताब नहीं खुलती थी, बट फिर मैं अपने आप को पुश करती थी कि एटलीस्ट चल एमसीक्यूज कर ले, वो एक कांस्टेंट था मेरे लिए, कंसिस्टेंसी मैं बोलूंगी, द ओनली थिंग दैट केप्ट मी दिस वाज एमसीक्यूज। मुझे पता था कि एंड में कितना भी थ्योरी कर लो, पेपर तो चार ऑप्शन है तुम्हारे सामने, आंखों के सामने, वो ही उसमें ही आंसर पड़ा हुआ है। एमसीक्यूज इज समथिंग, तुम दिन रात लगे पड़ो रहो उस पे, वही है, वही हेल्प करेगा, वही टॉपिक है, वही थियरी। और मैरो, आई विल टेल यू जेन्युइनली, देयर इज नो बेटर ऐप फॉर एमसीक्यूज देन मैरो। बनाया ही नहीं है, मतलब है ही नहीं मार्केट में, और आएगा भी नहीं, चाहे तुम डैम्स के रहो कुछ भी रहो, मैरो एक है, जो है तो है, मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, पूरा टॉपिक पढ़ लोगे, वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना फिर, मतलब यू डोंट हैव टू गो थ्रू द सेम अगेन टॉप क्वेश्चन अगेन, और एक बार वो टिक ऑफ हो गया कि, एंड स्पेशली द रॉन्ग क्वेश्चंस, तो वो यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट अगेन एवर, इज व्हाट आई फील। ट्रू। एंड और लो मेरा फेज सर, लो फेज में सर आपका भी लो फेज आता होगा, तो आपका क्या रहता था? लाइक माई यूज टू बी, आई यूज टू विजिट टेम्पल्स ऑल्सो, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक भगवान के, लाइक देयर इज शिव शंकर सॉन्ग्स आई यूज टू लिसन अ लॉट, एंड देयर मतलब यूज टू बी बेसिकली अराउंड की हर टेम्पल्स एंड इंसान एवरीथिंग का एक स्पिरिचुअल थोड़ा मेथड बहुत। होता है टू हाउ टू रिजॉल्व दैट थिंग। लाइक फॉर मी हम्म। 2025 सबसे बुरा ही साल था पूरे साल। बहुत सारी चीजें राइट पर्सनल लेवल पे और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। राइट। और जो मैं खुद भी जो अटेम्प्ट देना चाहता था वो नहीं दे पाए। बट ठीक है, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, कुछ लेके खत्म करेंगे वैसे भी चीजें। दैट डोंट नीड एट द टू एंड ऑफ द प्रूव डे सर वही तो एनीवन। चाहिए, खुद से या सेटिस्फाइड इफ यू होना आर चाहिए। हैप्पी देन यू डोंट नीड टू प्रूव एनीवन कि भाई आपको क्या है क्या नहीं या है, वो आपको फर्क नहीं पड़ता है। सो या आई एम डन विद इट। बट हाँ, वही है कि लो डेज, लाइक अगर लो डेज नहीं आ रहे तो इशू है मेरे हिसाब से प्रिपरेशन के टाइम पे। या ट्रू देन यू आर डूइंग समथिंग ट्रू ट्रू। रॉन्ग। True, true. Because yeah, if you're not, it is inhuman to have not have low days. मतलब तुम रोबोट ही रहोगे अगर तुम्हारे पास लो डेज नहीं है, मतलब तुम कर ही क्या रहे हो, मतलब वो तो रहना इसलिए ही अगर आप चाहिए, अपना वो बेस्ट एक दे रहे पार्ट हो एंड तो फिर तो पार्सल आएगा है। ही। अगर आप सॉरी अपना सर। बेस्ट अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो हाँ। फिर तो आना ही है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो उसके अलावा। हाँ, अगर आपको मूवीज देखने का टाइम मिल Correct. रहा है, आपको दोस्तों के साथ घूमने का टाइम मिल रहा है, ऑब्वियसली फिर लो डेज क्यों आएंगे?
So honestly, matlab, I'm grateful. Like my friends are really been they know कि I was preparing. So for 1 year I was not on Insta. I was completely out. मैं friends से भी ज्यादा मिलती नहीं थी because I had told them कि they even knew कि यार इसको करना ही है तो ये करेगी. So they knew this and they never disturbed me, कि never questioned me our friendship or anything like that. So luckily I have those good friends. So exam अगर मेरा कुछ लोगों के साथ एग्जाम के बाद I was so this thing कि यार मैं I cried that day. I had at night and I was still figuring out what is going to, because तभी तो 15 जून वाला की because the self doubt came in कि ये रैंक पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आईना में तो कुछ होप ही नहीं है, बट ये नीट में भी अगर गया तो ये तो बहुत ही ऊपर आएगा। तो आई न्यू कि कुछ तो गलत है, कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन पता नहीं समवेयर डाउन द लाइन मॉम वाज अप एंड मम्मी से बस मैंने एक बात करी तो मम्मी ने बस बोला कि तू कर लेगी। बस वो मम्मी का डिल्यूजन था या कुछ था, वो बस रहता है कि माँ ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो एक था। एंड जब भी रिजल्ट भी आया ना कि एवरीबडी वाज शॉक्ड, लाइक माय ब्रदर क्राइड and my father also was little teary, but इतने नहीं थे, but yeah, but my mom, when I showed my result to my mom, was like मुझे पता ही था। So वो जो रहता है ना, वो एक मदर का बैकबोन, और वो जो इट इज डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाट शी हैज इट माँ के पास जो क्या होता है, बट इट वाज समथिंग लाइक आई वाज लाइक मैं भी विश्वास नहीं कर रही थी जितना उसको मुझे मेरे पे था। Like मेरा खुद पे इतना सेल्फ बिलीव नहीं था, द अमाउंट ऑफ बिलीफ दैट शी हैड ऑन मी, सो दैट इज कंप्लीटली समथिंग दैट आई बिलीव कि वो होना चाहिए सबके पास। So yeah, I think we have covered majority of topics, and thank you so much. And congratulations, like Yeah, you have did something which more FMG will look up to you कि भाई किससे क्या करना है, yeah, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड yes, कोई भी ऐसा वो नहीं है बैरियर कि आप नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। आप आराम से चीज जो या चाहो। एंड अगर कोई Yeah, and अगर कोई बोल भी रहा है ना तो don't listen. You just have to prove it. You have to prove it not to them but for yourself. कि वो कभी ना कभी ना डाउट क्रिपिंग कर लेता है कि यार मैं तो एफएमजी हूँ, नीट नहीं हो पाया। लाइक नीट अगर मेरा मेरा एक्चुअली नीट भी हो गया था, बट मुझे यहाँ पे प्राइवेट मिल रहा था एंड आई डिड नॉट वांट टू टेक, वो पर्सनल रीजन से वॉट एवर एक्स वाई सेड। सो या सो डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट, जस्ट फोकस फोकस रखो अपना यार, बन तो जाओ, बस डिल्यूजनल रह जाओ। माँ की तो सुनो, माँ से बात करो, फैमिली है, बस एंजॉय करो। और इंटर्नशिप आई वुड से कि इंटर्नशिप को लाइटली मत लो। Like the things I've learned in internship have actually helped me in this year's and last year's NEET PG also, because my internship last year ended in जून के एंड में हुआ था एंड मेरे पास सिर्फ एक मंथ था प्रॉपर प्रेप का। मेरे पास प्रेप भी नहीं था बिकॉज आई वाज लाइक कि वो जब एक्सटेंड हुआ था ना तभी मेरे सारे हैवी पोस्टिंग्स थे, लाइक आई हैड सर्जरी मेडिसिन मेरे एंड में ही थे। सो मुझे पता था कि मेरे से पढ़ाई तो जितनी होगी उतनी। So in that 1 month also, and when I gave the NEET PG का paper also, I realized कि what they are not asking is हाई-फाई चीजें कोई नहीं पूछ रहा। दे ऑल आर आस्किंग इज व्हाट एज अ डॉक्टर यू वुड आर यू गोइंग टू डू इन द एज द फर्स्ट स्टेप। सो जस्ट कीप इंटर्नशिप एज अ प्राइमरी गोल, मुझे इंटर्नशिप अच्छे से करनी है। ऑब्जर्व द प्रोसीजर्स, इफ कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जस्ट जंप इन एंड हाँ बोल दो कि यू विल डू इट एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। लाइक प्लूरल टैपिंग हो गया, कुछ हो गया, गवर्नमेंट में बहुत मिलता है। सो जस्ट जंप इन, जस्ट से कि मुझे करना है। वो दे देंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी टायर्ड, जेआर आर ऑलरेडी टायर्ड, वो खुद ही थके हुए बोलते हैं यार कर लो तुम लोग। सो वो मिल जाएगा, यू विल एंजॉय, इंटर्नशिप कर लो एंड अच्छे से फिर नीट पीजी भी हो ही जाएगा। इट इज नॉट समथिंग दैट इतना बड़ा कुछ मत बनाओ उसको, लाइफ का ही पार्ट एंड पार्सल है, एग्जाम है। मैंने बनाया था बीच में, लाइक टिल आईना तक मेरा वो था कि इसको बना के चलो। बट उसके बाद ना जैनब मैम वाज वन थिंग दैट कॉन्स्टेंटली उनके वीडियोस में रात को ना देखती थी, चाहे वो 20 मिनट के क्यों ना हो, वो मर्ज रहते थे, कुछ भी रहते थे। एंड देन उनका जो आशीर्वाद क्लास था ना लास्ट का बिफोर द एग्जाम, दैट वाज गेम चेंजर फॉर मी। मैंने वो वीडियो 3 दिन देखी है। यू विल नॉट बिलीव कि मैंने वो यू विल बी लाइक कि 3 दिन क्यों देखी, एक बार देख लो हो गया, 2 बार देख लो हो गया, पर तीनों दिन देखी है। मतलब जब मैम ने पहली बार अपलोड की तभी, फिर दूसरी बार दूसरे दिन रात को मैम ने बोला था कि इसको वापस से एक बार देख लेना, फिर तीसरे दिन मैंने एग्जाम के दिन सुबह देखी थी। मैंने बोला यार इसके बिना मैं देख के नहीं जाऊंगी, चाहे मेरा कुछ थियरी हुआ हो ना हो पेपर के दिन। मैंने सुबह पेपर लगा था, एक पर्ची रखी थी जो पढ़नी थी मुझे, वो पढ़ के नहीं हुई, बट जना मैम की वीडियो पूरी देख के गई थी मैं, कि वो आशीर्वाद क्लास मेरे को बस देखनी है, बिकॉज वो पॉजिटिविटी चाहिए पेपर में ना घुसने से पहले। यू नीड दैट पॉजिटिविटी जस्ट टू यू नो कि या इट इज जस्ट एन एग्जाम, 3 आवर्स है, अच्छे से दो, कॉन्फिडेंट रहो, क्वेश्चन देखो एंड बस क्वेश्चन देखो, कुछ मत सोचो कि यार ये गलत हो गया, अभी करियर का क्या होगा, आगे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा, ये सब वो सब कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वो 3 घंटे तुम्हारे पास है, काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस एग्जाम है, खत्म करोगे 3 घंटे के बाद,
बाहर जो भी वेट कर रहा होगा तुम्हारा फैमिली वाला पूछेगा पेपर कैसा था, हाँ ठीक था, गंदा था, जो भी था बता दो, खत्म, आगे मूव ऑन करो, बिकॉज दिस इज जस्ट एन एग्जाम, नथिंग एल्स. True. So thank you so much for joining and congratulations Sir, once thank you, again. sir. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Thank you so much. It was really nice talking to you again. And I would just say कि virtual lab, just the one message कि anybody who is thinking कि घर पे बैठ के अकेले पढ़ाई नहीं हो रही है, join कर लो. Group is very nice. And also the way they are discussing, like I had found my study partner. There were two, three study partners that I found that I used to discuss questions with them. आते जाते होते कुछ भी रहते थे, तो I used to discuss. And all of them have got really good rank. Touch wood, they have got all of three of us have got a really good rank. So हमारा वही था कि we used to daily motivate कि रहता था कि मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आज का दिन का शेड्यूल क्या है, कितना पढ़ोगे, कितने घंटे में खत्म करना है. सो हमने वो भी करके रखा था. एंड में बिकॉज हो नहीं रहा था, तो हमने ऐसे करा कि लास्ट 10 डेज में ना हमने सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करते अच्छा ये दिन ये करना है, कितने कितने घंटे के लिए करना है, क्या क्या करना है. सो ये तक हमने प्लान आउट कर लिया था. सो दिस ग्रुप इज हैट्स ऑफ, हैट्स डाउन, इज समथिंग. मैं तो किसी को भी बोलती हूँ, अभी मेरे जूनियर्स भी पूछते हैं कि मैम कैसे करा, मैंने बोला पहले तो तू वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन कर, उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड क्या क्या करना, मैं सब धीरे धीरे आई लेट यू नो. सो दैट इज देयर कि people need to understand कि there is a space created for people like us who are studying at home, who are constantly like bored, because उनको चाहिए रहता है, we need someone to look up to कि देखने के लिए अच्छा कोई पढ़ रहा है कि नहीं, because वो boredom आ जाता है अंदर. सर वो ऐसा लगता है कि यार कौन है ये, क्या है ये, कुछ to keep you in rhythm and consistency ना, some group is needed. And what sir has done is just amazing, hands down. And it's not something that I would have even thought of it, but yeah, and at an affordable price पे रखना ना, तो वो impossible है. Hmm. So Yeah, thank you sir for that, there really was the thank you. purpose of this system, like कि जो भी लोग घर से पढ़ रहे हैं, और especially because there are 70% female who join this group. Yeah, So yeah, yeah. because majority वही घर से पढ़ रहे हैं, और बाकी लोग को दो लड़कों Yes, को दोस्त मिल जाते हैं, लड़के लोग बाहर चले जाते हैं. Post interns के लिए it's very tough to get a like study partner and something like that. yes, So thank you so much yes, yes. and congratulations once again. Yeah, Bye. Take care. yes sir, thank you sir, thank you sir. Yeah, yeah, bye.